Hello students, welcome back to my channel. I hope you have gone through the previous video thoroughly. Now in this video we are going to study the methods of preparation of colloidal solutions. Okay, so without delay let's begin. In my previous videos I have told you that there are two types of colloids on the basis of nature of interaction between the dispersed phase and dispersion medium, isn't it? The two were lyophobic and lyophilic colloids. Okay. Now, when we are talking about the method of preparation of lyophilic, so lyophilic colloidal solution, lyophilic colloidal solution, we know lyo means liquid, philic means attracting, isn't it? So when we are talking about lyophilic colloidal solution, we don't need any special methods because they already are solvent attracting. Solvent means dispersion medium attracting. So if you mix dispersed phase and dispersion medium directly, then by simple mixing only you will obtain the lyophilic colloids. Okay. So now the methods which we will study in this video for the preparation of colloidal solution are specifically for lyophobic colloids. Note this point, the methods we will be studying will be for what? For preparation of lyophobic colloids. Okay, so let us see. So lyophilic by direct mixing. If you remember, this was one of the difference between lyophobic and lyophilic colloid. That is, lyophilic colloids can be formed by simple mixing, and lyophobic colloids are formed by some special methods. Okay. So now we will be seeing the methods for lyophobic colloids. Lyophobic colloids. Okay. So lyophobic colloids specifically they are formed by some methods which are divided into two categories. Okay, there are two types of basically methods. One dispersion methods and another condensation methods. Okay, there are two types of methods for the preparation of lyophobic colloid: dispersion method and condensation method. Dispersion methods are also called as disintegration methods. ठीक है, अब नाम से ही पता चल रहा है disintegration का मतलब होता है टूट जाना. जो बड़े particles होते हैं वो they are being divided into or disintegrated into particles of colloidal range. Fine. और कंडेंसेशन मेथड जो हैं उनको हम एग्रीगेशन मेथड्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि कंडेंसेशन मेथड्स में जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो एग्रीगेट होके कोलॉइडल साइज के पार्टिकल्स बनाते हैं. ओके, नाउ इन डिस्पर्जन मेथड्स बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी टू वेरी इंपॉर्टेंट मेथड्स. वन इज ब्रेडिक्स आर्क मेथड, जिसको हम इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन भी बोलते हैं और इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन भी बोलते हैं. एंड here the second method which we will be studying in detail is peptidization method. Okay, so disintegration method में दो methods पढ़ेंगे हम. ब्रेडिक्स आर्क मेथड, जिसको हम और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मेथड भी बोलते हैं. ठीक है, और दूसरा है पेप्टाइजेशन. Whereas in condensation methods we are going to study some chemical methods. ठीक है, जैसे oxidation, reduction, hydrolysis and double decomposition. Okay, so कंडेंसेशन यानी एग्रीगेशन मेथड में ये चार मेथड्स हैं. बेसिकली केमिकल रिएक्शंस हैं सारे, बाय विच यू विल गेट द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल साइज. और डिस्पर्जन मेथड्स या डिसइंटीग्रेशन मेथड में ये दो मेथड्स पढ़ेंगे. ओके, सो लेट अस सी वन बाय वन इन डिटेल. सो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट मेथड, दैट इज द ब्रेडिक्स आर्क मेथड. Now this method, as I already told you, that it is also called as the electrical dispersion method.
This method specifically is used for preparation of salts of metals like PT, that is platinum, silver, gold, copper, etc. Now, let us see the experimental setup first. So the experimental setup for Bradig's arc method will be like this. First of all, a container is there in which another beaker is kept. In this beaker, some dispersion medium is taken, okay, and in this bigger container, bigger beaker, we are taking the freezing mixture, okay. So I can say let it be ice, okay. We'll take some freezing mixture, okay. There is a beaker in which some dispersion medium is there. This beaker is kept in another beaker which is consisting of freezing mixture, that is ice, okay. Now for example, I want to prepare gold sol, okay. So I will take 2 electrodes which will be made up of gold itself, okay. So these will be the metal electrodes. ये दोनों जो होते हैं वो क्या होते हैं, metal electrodes होते हैं. जिस भी metal का आपको prepare करना है सॉल, कोलॉइडल सॉल, वो मेटल के इलेक्ट्रोड्स आप ले सकते हो यहाँ पे. सो हमें अगर गोल्ड का प्रिपेयर करना है, वी हैव टेकन 2 electrodes which are of made up of gold. Now these 2 electrodes will be connected to the battery, okay, positive and negative. Now in this method what happens, see, when you will apply the voltage, an electric arc will be struck, ठीक है. इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होगा यहाँ पे विच इज विल बी प्रोवाइडिंग हाई टेम्परेचर, ठीक है. इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्रक होगा इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में और एक बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा, बिकॉज ऑफ विच द मेटल पार्टिकल्स विल गेट वेपराइज, ठीक है. जो इलेक्ट्रिक आर्क होगा, इलेक्ट्रिक आर्क की वजह से बहुत ज्यादा टेम्परेचर क्रिएट होगा तो एंड द मेटल विल गेट वेपराइज. मेटल के कुछ पार्टिकल्स क्या होंगे, वेपराइज हो जाएंगे, ओके. बट अब देखो, अगर वो पार्टिकल्स वेपराइज होके बाहर चले जाते हैं तो हमको कोलॉइडल सॉल्ट नहीं मिल सकता है, इजंट इट. दैट इज वाई वी हैव केप्ट दिस पर्टिकुलर बीकर इन अनदर कंटेनर कंसिस्टिंग ऑफ फ्रीजिंग मिक्सचर. तो क्या होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे फ्रीजिंग मिक्सचर लिया हुआ है तो जो पार्टिकल्स वेपराइज हो रहे हैं दे विल गेट कंडेंस्ड बैक इमीडिएटली, ठीक है. मतलब वो एस्केप नहीं हो पाएंगे, वेपराइज होके फटाफट से कंडेंस बैक होके कहाँ पे आ जाएंगे, इस डिस्पर्जन मीडियम के अंदर, ठीक है. हमें जिस डिस्पर्जन मीडियम में बनाना है हमारा सॉल, वो मीडियम लेते हैं हम. जिस मेटल का बनाना है उसकी इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, ओके. सो now first what will happen, electric arc will get struck, electric arc strike करेगा, because of which high temperature will be produced. metal जो है it will get vaporized, metal vaporize हो रहा है due to freezing mixture. what will happen, the third thing, the metal particles जो vaporize हुए थे, वेपराइज कैसे होते हैं, डिसइंटीग्रेट, क्योंकि हम ये डिसइंटीग्रेशन मेथड्स के पार्ट पढ़ रहे हैं. सो ड्यू टू फ्रीजिंग मिक्सचर मेटल पार्टिकल्स आर कंडेंस्ड बैक इमीडिएटली, ठीक है. तुरंत से वो वापस से कंडेंस्ड बैक हो जाएंगे, ओके. और इमीडिएटली इन डिस्पर्शन मीडियम, इस डिस्पर्शन मीडियम के अंदर कंडेंस्ड बैक हो जाएंगे. द नेक्स्ट स्टेप विच यू हैव टू डू इज एड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है. हम इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे जैसे कि KOH, फाइन. अब यू माइट बी थिंकिंग कि भाई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने की क्या जरूरत है, पार्टिकल्स तो कोलॉइडल साइज के आ गए, बन गए और डिस्पर्जन मीडियम में आ गए, तो अब ये तो हमको मिल गया कोलॉइडल सॉल्ट. लेकिन वो जो पार्टिकल्स है वो एग्रीगेट होके बड़े पार्टिकल्स बना सकते हैं, इजंट इट. तो बिकॉज दिस इज अ लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्ट और लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्ट स्टेबल नहीं होते हैं, फाइन. वो वापस से एग्रीगेट होकर सस्पेंशन बना सकते हैं, फाइन. और या तो वो पार्टिकल्स इलेक्ट्रोड में ही वापस से जाके चिपक सकते हैं, एंड दैट इज वाई हम उसमें क्या ऐड करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट जो है वो जो भी पार्टिकल्स मेटल के बने हैं उनके ऊपर
एड्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से जो मेटल के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ वापस से नहीं मिल पाते, एंड बिकॉज ऑफ विच द सॉल्ट विल बिकम स्टेबल। ठीक है, आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे तो सॉल्ट को क्या मिल जाएगी, स्टेबिलिटी मिल जाएगी। आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड नहीं करोगे तो सॉल्ट विल बी अनस्टेबल और वो पार्टिकल्स वापस से इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके स्टिक कर सकते हैं। इज इट क्लियर दैट एंड व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मेथड? ये भी पता चल गया, क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो तो मेटल के पार्टिकल्स वो हैं डिस्पर्स हो रहे हैं। ठीक है, ब्रेडिक्स आर्क मेथड क्यों कहते हैं? ब्रेडिक तो नाम है साइंटिस्ट का, आर्क क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्राइक किया जाता है, इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्रक होता है। ओके, जो हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करता है और मेटल वेपराइज होके फिर कंडेंस होता है फ्रीजिंग मिक्सचर की वजह से इन द डिस्पर्जन मीडियम, एंड व्हेन यू ऐड इलेक्ट्रोलाइट इट बिकम स्टेबल एंड यू ऑब्टेन दैट पर्टिकुलर लायोफोबिक colloidal salt for that particular metal. So this is all about the Bredik's arc method. Now let's see the second method, which also comes under the disintegration methods. It's peptization. Peptization is a very simple method in which a freshly prepared precipitate is taken and it is shaken with the dispersion medium. जिस भी dispersion medium में आप colloidal salt prepare करना चाहते हैं. Okay, let us define it first. Peptization, it is the process of converting a freshly prepared precipitate. Precipitate तो सबको पता है, aggregation of molecules, okay, into colloidal solution. ये freshly prepared जो precipitate होता है इसको colloidal solution में change करना by adding suitable electrolyte. Fine. अब देखो, जैसे हमारे पास precipitate है, precipitate plus द डिस्पर्जन मीडियम, जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड हमारे पास प्रेसिपिटेट है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट और डिस्पर्जन मीडियम है। फाइन, एक टेस्ट ट्यूब में ले लो ये दोनों चीज, शेक वेल, इसको अच्छे से शेक करो। ओके, एड इलेक्ट्रोलाइट, सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करो, जैसे कि KOH या एनीथिंग। ठीक है, डिपेंड करता है आप किसका सॉल्व बना रहे हो। What you will obtain? You will obtain the colloidal solution. Okay. So, सिंपल मेथड है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को एक टेस्ट ट्यूब में लो, उसमें हम सूटेबल डिस्पर्जन मीडियम डालेंगे, इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, अच्छे से शेक कर दो, एंड व्हाट यू विल ऑब्टेन द कोलॉइडल सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि जो प्रेसिपिटेट, जो लार्जर पार्टिकल्स थे वो डिसइंटीग्रेट होके टूट के छोटे छोटे पार्टिकल्स मतलब पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल रेंज में चेंज हो जाते हैं, एंड देयरफॉर यू विल ऑब्टेन द कोलॉइडल सॉल्यूशन। लेट अस टेक वन एग्जांपल फॉर दिस। ओके, फॉर एग्जांपल AgCl प्रेसिपिटेट है। ठीक है, AgCl PPT बनाता है। ठीक है, AgCl का PPT हमारे पास, इसके अंदर हमने ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड PPT है, AgNO3 जो कि एक्ट कर रहा है इलेक्ट्रोलाइट की तरह, ये ऐड किया। ठीक है, तो जो AgCl जो था मतलब PPT था वो डिसइंटीग्रेट हो गए, स्मॉल कोलॉइडल रेंज के पार्टिकल्स बना लिए। ओके, और जैसे ये बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स बने और इसके ऊपर क्या आ गया, ये ऐसे Ag+ आयन, कॉमन आयन आता है हमेशा, सो Ag+ आयन ऐसे आ गए। ठीक है, ये एक पार्टिकल दिखाया मैंने, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं ऑफ द कोलॉइडल रेंज। ये एक बड़ा पार्टिकल था प्रेसिपिटेट, और उसको बहुत बड़ा प्रेसिपिटेट था, वो टूट के ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कोलॉइडल साइज के पार्टिकल्स बना देता है। ओके, और ये बन जाता है आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन। और इस तरीके से जो कॉमन आयन है दैट विल गेट एब्जॉर्ब, और इसके एब्जॉर्ब होने से क्या फायदा है, दैट ये जो पार्टिकल्स टूट जाते हैं ना, जैसे ये एक पार्टिकल एक और बना देती हूं मैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स बन जाते हैं। फाइन, और ये फिर एक दूसरे के साथ वापस से नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मिल जाते तो ये तो फिर से प्रेसिपिटेट बना देते। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट का काम ही यही है कि इनको दोबारा से इंटीग्रेट नहीं होने देना, लायोफोबिक जो कोलॉइडल सॉल्ट बन रहा है उसको स्टेबल रखना। Okay, that is why you need to add electrolyte in lyophobic salts specifically. बहुत जरूरी होता है स्टेबिलिटी के लिए। Okay, so this is the process of peptization.
Now next we'll see the chemical methods. Okay, chemical methods also known as the condensation methods, that is here the particles will basically aggregate. So in chemical methods we'll be basically seeing the 4 types of chemical reaction which help to give us the colloidal solution. In that the first one is oxidation reaction. Okay, let us take one example. So over here, if I want to prepare a colloidal sol of sulfur, ठीक है, I want to prepare the colloidal sol of sulfur, so I have to take H2S. मेरे को H2S लेना पड़ेगा, that is hydrogen sulfide. Okay, and that I can react either with Br2 or with SO2. दोनों में से किसी के साथ भी हम react कर सकते हैं. See, when I am reacting H2S with SO2 के साथ जब मैं react करूंगी, so what I will obtain? Sulfur, and the byproduct will be H2O. Understand this point. H2S when reacted with SO2, so I will obtain sulfur, okay, S, and the byproduct will be H2O. When H2S is reacted with Br2, then I will be obtaining sulfur plus 2HBr. Okay, now why this is known as oxidation? Because you can see the oxidation state. In this case, the oxidation state of sulfur is -2, and over here it will be 0. Okay, so you can see that sulfur is getting oxidized. Fine, and we are preparing the colloidal sol of sulfur only. That is, जिसका colloidal sol बन रहा है वो कैसे बन रहा है? By oxidation. Therefore, this is the oxidation reaction. Okay, in both the cases, either you react H2S with Br2 or with SO2. दोनों के केस में हमको क्या मिल रहा है? Colloidal sol of sulfur on oxidation only. The byproducts will be different. Okay. सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज रिडक्शन रिएक्शन. अब रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है देखो, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिडक्शन रिएक्शंस आर यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्ट्स ऑफ मेटल्स लाइक AU, AG, PT एक्सेट्रा. ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम एंड ऑल. फाइन, इनके मेटल्स हमको प्रिपेयर करने के लिए रिडक्शन रिएक्शन हम यूज करते हैं. सो ओवर हियर सी, देखो अब हमने एग्जांपल लिया है गोल्ड का, ओके, AU का. सो ये कोलॉइडल सॉल यहाँ पे बनाने के लिए आई हैव टेकन हेयर AuCl3. नाउ AuCl3 व्हेन रिएक्टेड विद SnCl2, तो हमको क्या मिल रहा है? Au एंड SnCl4. ठीक है, अब यहाँ पे Au का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, यहाँ पर क्या है? 0. तो हो रहा है रिडक्शन, isn't it? ये रिडक्शन हो रहा है, एंड दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द रिडक्शन रिएक्शन. क्योंकि जिसका कोलॉइडल सोल्यूशन मिल रहा है वो कैसे ऑब्टेन हो रहा है? हमको रिडक्शन के थ्रू ऑब्टेन हो रहा है. ओके, और Sn जो है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है. देखो यहाँ पे है +2, यहाँ पे है +4, isn't it? सो इसका ऑक्सीडेशन हुआ Sn यानी टिन का, और गोल्ड का जो है रिडक्शन हुआ, और गोल्ड का हमको कोलॉइडल सॉल्ट मिला, एंड देयरफॉर इट इज नोन एज द रिडक्शन रिएक्शन. ये किसके लिए होता है? नोबल मेटल्स के लिए स्पेसिफिकली. थर्ड रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन. हाइड्रोलिसिस रिएक्शन का कॉमन एग्जांपल फेरिक क्लोराइड. ठीक है, FeCl3 व्हेन हाइड्रोलाइज, जब आप उसको वाटर में डिसॉल्व करते हो, फेरिक क्लोराइड के जो पार्टिकल्स है बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, तो वो जो है इंटीग्रेट हो जाते हैं. ठीक है, थोड़े से कंडेंस हो जाते हैं, एंड देन दे फॉर्म व्हाट? फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH थ्राइस प्लस HCl, और ये FeOH थ्राइस का ही हमको कोलॉइडल सॉल्ट मिलता है. ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन इज डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है, लाइक अब फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू प्रिपेयर कोलॉइडल सॉल्ट ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड, या आर्सेनिक का मुझे कोलॉइडल सॉल्ट प्रिपेयर करना है. सो आई हैव टेकन आर्सेनिक ऑक्साइड और H2S. ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन, जब आप AS2O3 को H2S से रिएक्ट करते हो तो क्या होगा? आर्सेनिक ऑक्साइड भी ब्रेक होगा, डिकम्पोज होगा, ये भी ये डिकम्पोज हो रहा है, H2S भी डिकम्पोज हो रहा है. ओके, और दोनों डिकम्पोज होके फिर क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ आयंस. ओके, एक्सचेंज ऑफ आयंस यहाँ पे हो रहा है. ठीक है, आर्सेनिक किसके पास जा रहा है? सल्फर के पास, एंड हाइड्रोजन किसके पास आ रहा है? इधर ऑक्सीजन के पास. सो वी आर ऑब्टेनिंग AS2S3 एंड H2O एज दी प्रोडक्ट. और AS2S3 का जो सॉल्यूशन जो मीन्स जो भी पार्टिकल्स होंगे वो कोलॉइडल रेंज के होंगे, एंड वी आर ऑब्टेनिंग द कोलॉइडल सॉल्ट ओवर हियर. फाइन. सो
All these are the chemical method which come in under the category of condensation methods. So हमने different methods पढ़े for the preparation of colloidal salts, specifically the lyophobic colloidal salts. Okay, lyophilic directly बनते हैं, lyophobic के लिए दो types के methods थे, disintegration methods and aggregation methods. Disintegration में Bradix arc और peptidization, aggregation में ये chemical reactions, chemical methods. Okay, fine. So this was all about the preparation of colloidal solution. Stay tuned, go through the video thoroughly. We will be back with the next video of the purification and properties of colloidal salt.